டெல்லியில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார். அதனை காணலாம். शासन में हुई जब ये पूरा सत्य उजागर हो गया, तब कल से कांग्रेस पार्टी ने फिर एक बार अपनी पुरानी पद्धति को आजमाते हुए बातों को तोड़ मरोड़ कर और सत्य को असत्य के कपड़े पहनाकर समाज में भ्रांति फैलाने का एक कुत्सित प्रयास किया है। संसद में जब चर्चा हो रही थी, कांग्रेस बाबा साहेब आम्बेडकर का பாராளுமன்றத்திலும் வெளியிலும் किस तरह से உண்மைக்கு புறம்பான பொய்களை பரப்பி வருகின்றன. बाबा साहब के न रहने के बाद भी किस प्रकार से कांग्रेस ने बाबा साहब को हास्य पर धकेलने का प्रयास किया। जब பாபா சாஹிப் அம்பேத்கர் பற்றி நான் தவறாக பேசியதாக சொல்லி வருகின்றனர். ஆனால் காங்கிரஸ் பார்ட்டி பாபா சாஹிப் அம்பேத்கரை எத்தனை முறை எந்த மாதிரியெல்லாம் அவமானம் செய்தார்கள், அவமரியாதை செய்தார்கள் என்பது உலகத்திற்கே தெரியும். பாபா சாஹிப் அம்பேத்கர் மக்களவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதற்கு விரோதமாக காங்கிரஸ் செயல்பட்டு அவரை தோற்கடித்தது. அவரை பாராளுமன்றத்தில் கொண்டு வருவதற்கு எந்த முயற்சியும் இருக்கவில்லை. कांग्रेस के नेताओं ने कई बार खुद ही अपने आप को भारत रत्न दिए हैं। 55 में नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न दे दिया, 71 में इंदिरा जी ने खुद को भारत रत्न दे दिया और 1990 में बाबा साहब को भारत रत्न तब मिला जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं रही। பாபா சாஹேப் அம்பேத்கருக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்குவதிலும் காங்கிரசார் எந்தவித ஆர்வமும் காட்டவில்லை. தங்களுக்கு தாங்களே பாரத ரத்னா வழங்கிக் கொள்வதில் அவர்கள் முயன்று வந்தார்கள். 1956 நேரு தனக்குத்தானே பாரத ரத்னா வழங்கிக் கொண்டார். 1971 இந்திரா காந்தி தனக்குத்தானே பாரத ரத்னா வழங்கிக் கொண்டார். ஆனால் அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் அரசு அமைந்த போது 1990 மட்டுமே அம்பேத்கருக்கு பாரத ரத்னா வழங்கப்பட்டது. नेहरू जी की खुद की किताब सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सेकंड सीरीज वॉल्यूम 16, इसके भाग 2 की पृष्ठ संख्या 532 पर एक पत्र का उल्लेख है, जब बीसी राव ने नेहरू जी को पत्र लिखकर कहा कि अंबेडकर जी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर जाने का मन बना रहे हैं, तब नेहरू जी का ये जवाब था, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अंबेडकर जी के महान योगदान का मूल्यांकन जवाहरलाल जी किस तरह से செலக்டட் ஒர்க்ஸ் என்கின்ற புத்தகத்தில் இரண்டாவது नहीं हो सकता। பகுதியில் 525வது பக்கத்தில் பிசி ராவ் அவர்கள் நேருஜிக்கு எழுதிய கடிதம் ஒன்று தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதில் அவர் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் மந்திரி சபையில் இருந்து ராஜினாமா செய்யவிருக்கிறார் என்று சொல்லியிருக்கிறார். அதற்கு நெஹ்ரு பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் ராஜினாமா செய்து செல்வதால் மந்திரி சபையில் எந்த மாற்றமும் நிகழாது என்று கூறியிருக்கிறார். बिल्कुल सामान्य बात नहीं होगी। आमतौर पर स्मारक निजी पहल से किया जाता है। अपने परिवार के चाहे कोई भी सदस्य हो, नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, संजय गांधी हो, राजीव गांधी हो, कई सारे लोगों के लाखों स्मारक देश के अंदर बनाने वाले परिवार के मुखिया कहते हैं कि आमतौर पर निजी पहल पर स्मारक बनाया जाता है, क्योंकि ये स्मारक B.R. अम्बेडकर जी का था। मित्रों, அம்பேத்கர் அவர்களின் நினைவிடம் அமைக்கின்ற விஷயத்தில் அது ஒரு தனிப்பட்ட நிலத்தில் தான் அமைய வேண்டும் என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். ஆனால் நேருவின் குடும்பத்தில் நேரு, இந்திரா காந்தி, ராஜீவ் காந்தி, சஞ்சய் காந்தி இவர்கள் அனைவருக்கும் பொது இடங்களில் நினைவிடம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் அம்பேத்கரின் நினைவிடம் தனியார் இடத்தில் தான் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள். नेहरू जी के आश्वासन के बावजूद अंबेडकर जी को कोई महत्वपूर्ण विभाग नहीं दिया गया और ये स्पष्ट इसके अंदर उल्लेख है कि सरकार की नीतियों, विशेषकर विदेश, रक्षा और अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़ी हुई नीतियां और 370 के खिलाफ अंबेडकर जी थे। जब
एक और कांग्रेस पार्टी है बाबा साहेब आम्बेडकर का நேருஜி அழைத்த முதல் அமைச்சரவையில் அம்பேத்கருக்கு எந்த துறையும் வழங்கப்படாமல் அமைச்சராக जहाँ நிறுவப்பட்டிருந்தார். जहाँ विपक्ष की सरकारें आती அப்போது गई स्मारक அவர் बनते गए. भारतीय இந்தியாவின் जनता வெளிநாட்டு पार्टी की கொள்கைகள் सरकारों ने और नरेंद्र मोदी ஆர்டிகல் जी की 370 सरकार போன்ற ने பல बाबा साहब के விஷயங்களில் जीवन के அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு நம்முடைய संबंधित கருத்தோடு पंच का विकास முரண்பாடு किया. இருக்கிறது, எனவே मध्य அவருக்கு प्रदेश में எந்த விதமான அமைச்சரவையும் தர முடியாது लंदन में என்று स्वस्थान நேரு जहाँ बाबा அவர்கள் साहब கூறினார். पढ़ते थे, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थान और महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित चैत्य भूमि का विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया. 19 नवंबर 2015 को नरेंद्र मोदी जी ने अम्बेडकर जी के सम्मान பாபா में சாஹிப் அம்பேத்கர் 26 படித்த இடம் नवंबर को அவருடைய संविधान दिन घोषित किया. நினைவிடம் डॉक्टर மத்திய अम्बेडकर பிரதேசத்தில் அவர் इंटरनेशनल பிறந்த இடம் सेंटर की स्थापना भी की. பாம்பேயில் அவருக்கு ஒரு நினைவிடம். இது எல்லாம் प्रधानमंत्री பாரதிய ஜனதா नरेंद्र கட்சி मोदी जी ஆட்சிக்கு வந்த போதுதான் ने நடைமுறைக்கு महापरिनिर्वाण வந்தது. स्थल पर डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक का उद्घाटन किया, जो लगभग 2 एकड़ में फैला है. मित्रों, मैं आज जब आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं, तब राज्यसभा में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया. मेरा मीडिया के सभी मित्रों से आग्रह है, कांग्रेस ने सार्वजनिक जीवन में जो पद्धति की है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हो हल्ला मचाना, ராஜ்யசபாவில் இன்று நான் பேசியதை पहले उन्होंने குறித்து நான் नरेंद्र मोदी जी பாபா के சாஹிப் भी அம்பேத்கரை एडिटेड அவமரியாதை बयानों को செய்ததாக सार्वजनिक किया. காங்கிரஸ் கட்சியினர் चुनाव கூறி जब चल வருகின்றனர். रहा था, இது அவர்களுடைய मेरे बयान வழக்கம். को காங்கிரஸ் AI का கட்சி उपयोग உண்மையை करके எப்போதுமே एडिट किया திரித்து गया பொய்யாக और पूरे மாற்றுவதில் देश में வல்லமை इसको கொண்டவர்கள். प्रसारित करने का घृणित काम किया गया. और आज अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं. मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, मीडिया को विनंती भी करना चाहता हूं कि मेरा पूरा बयान जनता के सामने रखिए. मैं वो पार्टी से आता हूं जो पार्टी कभी अंबेडकर जी का अपमान नहीं कर सकती. உண்மையை சொல்ல விரும்புகிறேன். ஊடகங்கள் மூலமாக पार्टी ने உண்மையை நாட்டுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். என்னுடைய பேச்சு, ராஜ்யசபையில் நான் பேசிய பேச்சு உங்களுக்கு भारतीय जनता பொதுவெளியில் पार्टी शासन இருக்கிறது. में रही நீங்கள் உண்மையை अम्बेडकर உலக जी के நாட்டுக்கு सिद्धांतों का சொல்லுங்கள். हमने प्रचार किया है. आरक्षण को और मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है. நாங்கள் அம்பேத்கரின் கொள்கைகளை जिस பரப்பி प्रकार இருக்கிறோம். से இடஒதுக்கீட்டை வலுப்படுத்துவதற்கான பணிகளை वो भी செய்திருக்கிறோம். हम सब जानते हैं. पिछड़ा वर्ग आयोग काका साहेब कालेलकर आयोग 53 में बना, 55 में रिपोर्ट आई, आज तक वो रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया. 31 दिसंबर 1980 को मंडल आयोग बना, मंडल आयोग की रिपोर्ट आई. 80 में इंदिरा जी ने मंडल आयोग को ठंडे बस्ते में डाल दिया. 90 में जब गैर कांग्रेसी सरकार आई, இடஒதுக்கீடு தொடர்பாக பல मंडल குழுக்களின் आयोग की அறிக்கைகளை रिपोर्ट लागू அமல்படுத்தாமல் हुई. उस वक्त அப்படியே राजीव காங்கிரஸ் गांधी அரசுகள் வைத்திருந்தன. विपक्ष के नेता थे. மண்டல் கமிஷன் அறிக்கையை கூட இந்திரா காந்தி அவர்கள் அமல்படுத்தாமல் வைத்துவிட்டார்கள். संसद में आया, राजीव जी ने अपने जीवन का सबसे लंबा भाषण ओबीसी के आरक्षण का विरोध करने के लिए किया. आज मैं फिर से एक बार आग्रह के साथ मीडिया को बताना चाहता हूं, பிற்படுத்தோருக்காக सच्चाई को மண்டல் जनता கமிஷன் तक ரிப்போர்ட் பற்றிய पहुंचाना. விவாதம் मेरी पूरी ராஜ்யசபையில் बात வந்தபோது बहुत ராஜீவ் स्पष्टता காந்தி के साथ, அதை எதிர்த்து மிக நீண்ட कोई உரையாற்றினார். कंफ्यूजन के बगैर राज्यसभा के रिकॉर्ड पर है. आज भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ट्वीट कर भी इस सत्य को लोगों के बीच में पहुंचाया है. और जिन्होंने जीवन भर बाबा साहेब का अपमान किया, जिन्होंने जीवन भर बाबा साहब के सिद्धांतों को दरकिनार किया, जिन्होंने जब तक सत्ता में रहे बाबा साहब को ராஜ்யசபாவில் भारत रत्न நான் मिलने பேசிய नहीं दिया, விஷயத்தை जिन्होंने பாரதிய जब तक ஜனதா सत्ता पर கட்சியின் रहे உறுப்பினர்கள் பலர் आरक्षण के ட்விட்டர் மூலமாக सिद्धांतों की धज्जियां பகிர்ந்திருக்கிறார்கள். उड़ाए, वो ஆனால் लोग आज बाबा ராஜீவ் साहेब காந்தியை अम्बेडकर के வாழ்க்கை नाम पे முழுவதும் क्रांति அவமரியாதை फैलाना चाहते செய்தவர்கள், हैं. அவர்களுடைய கொள்கைகளை வாழ்க்கை முழுவதும் कांग्रेस के பின்பற்றாதவர்கள் अध्यक्ष खड़गे இப்போது जी को भी என்னுடைய कहना உரையை चाहता हूं, மாற்றி खड़गे साहब, தீர்த்து கூறி நான் आपका तो कम से பாபா कम சாஹிப் दायित्व बनता அம்பேத்கரை है அவமரியாதை कि செய்ததாக आप उस சொல்கிறார்கள். वर्ग से आते हो जो वर्ग के लिए बाबा साहब आम्बेडकर जी ने पूरा जीवन समर्पित किया.
आपने कम से कम कांग्रेस के एक कुत्सित प्रयास में सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। मुझे बड़ा दुख है कि आप भी அம்பேத்கர் எந்த राहुल गांधी जी के வர்க்கத்துக்காக दबाव में பாடுபட்டாரோ इसके अंदर அந்த शामिल வர்க்கத்திலிருந்து हुए। வந்தவராக நீங்கள் இருப்பீர்கள். அப்படி आज இருந்தால் जब हम सब காங்கிரசின் यहाँ இந்த बैठे हैं, தவறான मैं फिर से பிரச்சாரத்தை एक बार कहना பரப்பாதீர்கள். चाहता हूँ, कांग्रेस के पास इस संविधान के ऊपर की चर्चा में बाबा साहेब आम्बेडकर विरोधी कांग्रेस है, इसका कोई जवाब नहीं बचा। संविधान विरोधी कांग्रेस है, इसका कोई जवाब नहीं இந்த बचा। அரசியலமைப்பு कांग्रेस சட்டத்தை பற்றி आरक्षण विरोधी है, பாராளுமன்றத்தில் इसका நடந்த कोई விவாதத்தில் जवाब नहीं बचा। कांग्रेस அம்பேத்கர் सावरकर பற்றிய विरोधी है, इसका भी कोई जवाब அவர்களுடைய नहीं बचा। விரோத போக்கிற்கு कांग्रेस எந்த ओबीसी பதிலும் विरोधी है, சொல்வதற்கு उसका भी இருக்கவில்லை. कोई जवाब नहीं बचा। आपातकाल का पाप இடஒதுக்கீடுக்கு எதிரான कांग्रेस के ही அவர்களுடைய समय में हुआ, நிலைக்கு इसका भी कोई जवाब नहीं எதிராக बचा। அவர்களால் எதுவும் नारी சொல்ல सम्मान முடியவில்லை. का विरोध भी कांग्रेस ने ही किया, वो प्रस्तापित हो गया। न्यायपालिका का பெண்கள் अपमान ही இடஒதுக்கீடு कांग्रेस ने ही எதிர்த்து அவர்கள் किया, பேசினார்கள். वो भी அதையும் प्रस्तापित நாங்கள் हो गया। भारत की भूमि நிலைநிறுத்தியிருக்கிறோம். को भी संविधान को दरकिनार कर विदेश को सौंपने का पाप भी कांग्रेस ने ही किया, ये भी प्रस्तापित हो गया। तब फिर से एक बार चीर परिचित अपनी पुरानी नीति पर कांग्रेस आई है और उन्होंने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर आधा ही दिखाकर जनता के இந்த सामने நிலையில் रखना காங்கிரஸ் और மீண்டும் भ्रांति அவர்களுடைய फैलाने का பழைய प्रयास किया है। செயலை कृपया செய்திருக்கிறார்கள். मेरा என்னுடைய पूरा பேச்சை बयान திணித்து आप நான் सभी लोग அம்பேத்கரை जनता तक पहुंचाइए, அவமரியாதை तो दूध செய்ததாக का கூறி दूध और வருகிறார்கள். पानी का पानी தயவு हो செய்து जाएगा। உண்மை என்ன मैं उस என்பதை पार्टी நாட்டு से மக்களுக்கு आता हूँ, சொல்லுங்கள். उस संस्कृति से आता हूँ जो स्वप्न में भी बाबा साहब के विचारों का या बाबा நான் साहब के அந்த स्वयं का பாரம்பரியத்திலிருந்து अपमान नहीं कर வருகிறேன். सकते। நாங்கள் கனவில் கூட हम जानते பாபா हैं சாஹேப் कि அம்பேத்கர் देश के அவர்களுக்கு संविधान को அவமரியாதை समावेशी बनाने நினைத்தவர்கள் में அல்ல. देश के पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीबों को और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए और देश के लोकतंत्र की नींव को इतनी नीचे तक गहरी पहुंचाने में बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। पूरा देश बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। कम से कम हम இந்த तो நாடு ऐसा नहीं முழுவதும் कर सकते பாபா சாஹேப் जिससे बाबा பற்றி साहब का தங்களுடைய நன்றியை और मैं फिर தெரிவித்துக் से एक बार கொண்டிருக்கிறது. कांग्रेस के ये कुत्सित प्रयासों की எனவே நான் घोर மீண்டும் ஒரு निंदा முறை करता हूँ। காங்கிரஸ் जो கட்சியின் இந்த संविधान கெட்ட செயல்களை दोनों கடுமையாக सदनों में चर्चा हुई, கண்டிக்கிறேன். कम से कम भारतीय जनता पार्टी की ओर से चर्चा का स्तर मेंटेन करने का पूरा प्रयास किया गया था, विषय पर बोलने का आग्रह किया गया था और तथ्य के साथ बोलने का आग्रह भी हमारे सारे वक्ताओं ने किया था। वो सारे प्रयास पर कांग्रेस ने पानी फिरा है और मैं मानता हूं कि देश की जनता इसके इस प्रयास को भी जानती है, उनकी मानसिकता को भी जानती है और उनकी संस्कृति को भी जानती है। பூர்த்தி செய்த அரசியல் சட்டம் பற்றி பேசிய பாரதிய ஜனதா கட்சி உறுப்பினர்கள் அரசியல் சட்டத்தை பற்றி பேசினார்கள். காங்கிரஸ் கட்சி அதனை நீர்த்து போகும் அளவிற்கு செயல்களை செய்து கொண்டிருக்கிறது. உண்மையை உறக்க மக்களுக்கு சொல்லுங்கள். நன்றி. देखिए, मैं पार्लियामेंट के बारे में बाहर जवाब नहीं दे सकता, परंतु मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इसके सारे लीगल ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी तरासेगी। पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर क्या लीगल एक्शन हो सकते हैं, वो सारी संभावनाओं को तराशकर भारतीय जनता पार्टी ने பாராளுமன்றத்தில் நடந்த விஷயத்தை பற்றி நான் வெளியிலே பேச முடியாது. இதை பற்றி வெளியில் என்ன நீதிமன்ற நடவடிக்கைகள் எடுக்க முடியுமோ, பாராளுமன்றத்திற்கு உள்ளே என்ன நீதிமன்ற நடவடிக்கைகள் எடுக்க முடியுமோ அவை எல்லாவற்றையும் நாங்கள் எடுப்போம். டெல்லியில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா செய்தியாளர்களை சந்தித்து அம்பேத்கர் குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் பேசிய தொடர்பாக விளக்கமளித்தார். அந்த காட்சிகளை தற்போது பார்த்தோம். செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.